بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمطيعين والنعر للمعاصين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد سند حبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا إن شاء الله بالقاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوات أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على النساء العالمين صدق الله العلي العظيم صلوات شاد خداوند عالم ہو رہا ہے سورہ آل عمران کی سایہ مبارکہ میں میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو کہ جب مریم محراب عبادت میں کھڑی تھی اور اللہ کے فرشتے انہیں آواز دے رہے تھے کہ مریم ان اللہ اصطفاک و طہرک واصطفاک کہ اللہ نے تمہارا اجتباء کیا ہے، تمہیں چنا ہے، تمہیں پاک و پاکیزہ کیا ہے اور پھر تمہیں چنا ہے علی النساء العالمین تمام عورتوں کے لیے۔ قرآن مجید ویسے بھی بابرکت ہے، اس کا پڑھنا بھی برکت ہے، اس کا سننا بھی برکت ہے اور اس کے زندگی میں اپنی زندگی میں عمل کرنے کے خود اپنے جو ہے برکت کے آثار ہیں۔ لہٰذا یہ قوم اگرچہ ماہ رمضان المبارک آئے تو پڑھ کر یہ ثابت کرے کہ یہ فقط نوحے اور مرثیہ پڑھنے والی قوم نہیں ہے بلکہ قرآن بھی پڑھنے والی قوم ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اس شہزادی کا تذکرہ کر رہی ہوں اس آیہ مبارکہ کے زیر سایہ کہ اللہ نے یہاں اس مریم کا تذکرہ کیا، اسی کے زیر سایہ مریم کبریٰ کا تذکرہ تھا کہ جہاں پیغمبر نے کہا کہ جب میری بیٹی محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے آواز دیتے ہیں فاطمہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں اصطفیٰ کیا ہے، تمہیں مصطفیٰ کیا ہے، تمہیں پاک و پاکیزہ کیا ہے۔ اور مریم کو چنا تھا فقط ایک عیسیٰ کے لیے، مگر مریم کبریٰ فاطمہ زہرا کو چنا ہے، یعنی 11 اماموں کی والدہ بنانے کے لیے، ام الائمہ بنانے کے لیے، جن کو اصطفیٰ کیا اور مصطفیٰ کیا۔ اور یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اگر آپ اس پیش عذاب فقط ماہ محرم تک نہیں آتے ہیں بلکہ آپ قرآن مجید کے اس دعوت میں بھی آتے ہیں، کیونکہ شہزادی نے فرمایا کہ مجھے تمہاری اس دنیا سے فقط 3 چیزیں پسند ہیں۔ ایک رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کرنا پسند ہے، مجھے تمہاری اس دنیا سے فقط 3 چیزیں پسند ہیں، ایک انفاق فی سبیل اللہ پسند ہے یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا پسند ہے، رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کرنا پسند ہے، تیسرا قرآن مجید کی تلاوت کرنا پسند ہے، قرآن کی تلاوت کرنا پسند ہے۔ یعنی اگر ہم سے سوال کیا جائے کہ آپ کو پوری دنیا میں کیا پسند ہے، پورا دن گزر جائے، پوری رات گزر جائے، مہینوں گزر جائے یہ سوچنے میں کہ کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے، اس لیے کہ ہمیں تو پوری دنیا ہی پسند ہے اور اسی لیے ہم دنیا پرست ہیں۔ مگر شہزادی سے سوال کیا گیا کہ پوری دنیا میں کیا پسند ہے تو آپ کو سیکنڈ نہیں لگا بتانے میں کہ اس دنیا میں فقط 3 چیزیں پسند ہیں، اور اس میں فقط 3 چیزوں میں جس کا آپ نے سب سے پہلے تذکرہ کیا وہ کہا کہ تلاوت قرآن پسند ہے، اور اسی لیے آپ نے کہا تھا یا علی جب میری قبر پر آئیے گا تو تلاوت قرآن کیجیے گا۔
जब मेरी कब्र पर आइएगा तो तिलावत कुरान कीजिएगा। ये कुरान फकत पढ़ के रखने की चीज़ नहीं है, बल्कि इसको अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर अमल करने की चीज़ है। और यही वजह है कि मुसलमान खजाने पर बैठे हुए हैं, मगर उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा गरीब यही है, सबसे ज़्यादा फाकाकश यही है, सबसे ज़्यादा असील यही है, सबसे ज़्यादा गुर्बत ज़दा यही है, इसलिए कि फ़कत पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, अमल नहीं कर रहे हैं। वरना साइंस का तस्करा कुरान में है, जोग्राफिया का तस्करा कुरान में है, कौन सा ऐसा इल्म है जिसका तस्करा कुरान में ना हो। ज़रूर पढ़े पर मोहम्मद वाले इसी कुरान मजीद में यूँ तो हर आयत जो है बाबरकत है, हर सूरा बरकत है, हर आयत का नुक्ता बरकत है। इसीलिए जब नुक्ते में सिमट जाए तो हैदर कर्रार बन जाता है, और जब फैल जाए तो इतना फैलता है कि 70 रूटों में बार कर दिया जाए, मगर उसके बावजूद भी फ़कत सूरह हमद की तफसीर नहीं बयान की जा सकती। अमीर अल-मोमिनीन ने कहा था कि मैं बयान करने पर आऊँ इब्ने अब्बास तो 70 ऊँट बार कर दिए जाएंगे, मगर सूरह हमद की जो है तफसीर बयान नहीं होगी। और इसीलिए पैगंबर ने कहा फ़कत सूरह हमद को अगर खुलूस दिल से पढ़ के किसी मुर्दे पे दम कर दिया जाए तो अगर वो जिंदा हो जाए तो ताज्जुब ना करें। सूरह फातिहा को कहा गया, जिसे उम्मुल कुरान भी कहा गया है, कि तमाम बीमारियों के लिए शिफा है। सूरह यासीन जिसे कुरान का दिल कहा गया, सूरह रहमान जिसे उर्दुल कुरान कहा गया, सूरह यासीन के लिए है जो कुरान का दिल है, जो कुरान को जिंदा रखे हुए है। वो भी हमको कैसे हो सकता है कि उसके पढ़ने से कोई मर जाए? ये तो कौम की गुमराही है कि लोग सूरह यासीन से डरने लगे और ये कहें कि नहीं, इसे उसी वक्त पढ़ा जाता है जब किसी का दम ना निकल रहा हो। सूरह यासीन खुद खैर बाबरकत है। पैगंबर ने फरमाया कि जो इसे जिस हाजत के लिए पढ़े वो हाजत पूरी होगी। तो बहरहाल कुरान खुद बाबरकत है, जैसे शहजादी कौनैन ने पसंद फरमाया और आपने कहा है कि मैं पसंद करती हूँ तुम्हारी इस दुनिया से कुरान की तिलावत को। और उसी शहजादी की ज़िंदगी से फ़कत एक रुख बयान करूँ कि आपको शफ़ी आज़म करार दिया गया। माह रमज़ान मुबारक मैंने कुरान की तरफ से 1 दकीका पेश कर दिया, दूसरा दकीका फ़कत शिफात की तरफ से पेश करूँगी, इसलिए कि पैगंबर की हदीस है जो माह रमज़ान में न बख्शा गया तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं है सिवाय मैदान अरफात के। जो मैदान अरफात में न बख्शा जाए उसके लिए कोई रास्ता नहीं है सिवाय हुसैन के दरवाजे के, यानी सिवाय हुसैन के फाशिया तक। यानी इसमें कोशिश कीजिए कि बख्शे जाएँ, ना बख्शे जाएँ तो अल्लाह से तौफीक मांगिए। कम से कम मैदान अरफात में नहीं जा सकते तो अरफात के अमाल घर पे ही अंजाम दे दो, खुदा बख्श दे अरफात के रोज़, यानी 9 ज़िलहज को। और उस दिन भी ना बख्शे जाएँ तो माह मुहर्रम जब आए तो हुसैन के फर्श अज़ा को खुलूस के दिल से आइए, और खुलूस दिल से आइए और अल्लाह से हुसैन का वास्ता देकर, उनकी औलाद का वास्ता देकर बख्शिश तलब कीजिए। जनाब ज़हरा को शफ़ी आज़म करार दिया, यानी सबसे ज़्यादा वसी शफाअत करने वाली। ऐसी शफाअत ना पैगंबर करेंगे, ना अली मुर्तज़ा करेंगे, ना हसन मुश्तबा करेंगे, हत्ता कि खुद हुसैन सैयद शुहदा भी ऐसी शफाअत नहीं करेंगे जैसी कि खुद जनाब फातिमा ज़हरा करेंगी। आखिर इसकी वजह क्या है कि इतनी बड़ी शफाअत का दायरा अल्लाह ना अपने हबीब को दे रहा है, ना अपने वली को दे रहा है, ना इमाम को दे रहा है, जो फातिमा ज़हरा को दे रहा है। तो इसको मैं बहुत आसानी से वाज़ेह करूँ कि अल्लाह की कुछ सिफ़ात हैं, कोशिश कीजिए कि उसकी कुछ सिफ़ात जो है हमारी ज़िंदगी में जलवागर हो जाएं। वो रहीम है, कोशिश कीजिए हम भी रहीम बन जाएं। वो करीम है, कोशिश कीजिए करम करने वाले बन जाएं। उसकी 2 सिफ़ातें हैं, एक है जलाली, एक है जमाली। जलाली सिफ़ात जो है जब्बार, जलाली सिफ़ात है कहार, जलाली सिफ़ात है इंतकाम लेने वाला, जमाली सिफ़ात है रहीम, जमाली सिफ़ात है करीम। औरत अल्लाह की वो मखलूक है जिसके दिल को अल्लाह ने नर्म बनाया है। अगर कोई औरत है और उसके बावजूद दिल नर्म नहीं है तो सोचने की बात है, और अगर दिल नर्म है तो अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए। जहाँ तमाम नेमतों पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं वही उसी तरीके से जब अल्लाह आपका दिल नर्म है तो अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए। इसलिए कि दिल नर्म है, इसी वजह से औरत का ताल्लुक अल्लाह से जल्दी बन जाता है। जब ये इबादत के मकाम पर आती है इसका ताल्लुक अल्लाह से जल्दी बन जाता है, गहरा बन जाता है। लिहाजा औरत के अंदर सिफात जमाली अल्लाह की है, नर्म दिल पाई जाती है, जल्दी माफ़ कर देती है। 1000 बार गलतियाँ की जाए फिर वही गलती दोहराई जाए, फिर आने वाला आता है फिर रोता है, ये औरत फिर माफ़ कर देती है। ऐसे ही अल्लाह ने नहीं माँ बना दिया है। माँ बनने के लिए भी बहुत हौसला चाहिए होता है, इसीलिए औरत को अल्लाह ने माँ बनाया है। बाप को एक दिन के लिए बना देता तो नहीं मालूम शाम तक वो बच्चा मिलता कि नहीं मिलता।